Hello everyone, I'm Raghav. I'm a software engineer at Google. Today we will be looking at the problems of LeetCode Weekly Contest 396. The first three problems were easy medium and the last problem was on the medium hard side. So let's see all of them one by one. So the first question was a valid word. So it was a very simple question. A word is considered as valid if it consists of minimum of 3 characters. That means the size should be greater than or equal to 3. It consists of the digits, the uppercase and the lowercase English letters. That means it can be from 0 to 9, smaller a to z or capital A to Z, and must include at least one vowel, and the vowels includes a, e, I, o, u. So a, e, I, o, u must include at least one of them and must includes at least one consonant. That means the rest of the letters must include at least one of them. So these are the conditions. So we have to just iterate through all the characters of the word and check if they satisfy all of these. So first we have to just make sure that the size should be greater than 3. So if the word length is greater than is less than 3, we immediately return false. That means it is not a valid word. Else I have maintained two booleans, for one for a vowel and the second for a consonant, and I'll be iterating through all the words and checking if it's a digit, then it's fine. If it's a then I'm checking if it is a vowel basically. So I'm checking if the character is in the set A, E, I, O, U. That means I have found a vowel, then I mark it as true. Else if it is an alphabet, that's also fine. That means it is a consonant. Then also I'll mark the consonant as true. Else I'll return false. That means I have found something apart from a number or an alphabet. So I'll return false. At last, I have to make sure that there is at least one vowel and one consonant in my word. So that's all for this problem. Let's move to the next problem. So the minimum number of operations to make the word k periodic. You are given a word of size n and an integer k such that k divides n. So let's write the necessary constraints and conditions. So you are given a word of size n and an integer k. So हमें n पता है और k पता है, such that the k divides n. That means n modulo k है जो हमारा वो 0 है. In one operation, you can pick any two indices I and j that are divisible by k. So ये हमारा कुछ वर्ड है इस टाइप का और हमें यहाँ से i उठाना है एंड हमें यहाँ से j उठाना है. And then replace the substring of length k starting at I with the substring of length k starting at j. That means अगर मैंने यहाँ पे कुछ I लिया तो मैं यहाँ से k लेंथ की सबस्ट्रिंग और यहाँ से k लेंथ की सबस्ट्रिंग लूंगा और इनको रिप्लेस कर सकता हूँ. दैट मीन्स मैं इसको इसकी जगह रख सकता हूँ. That means to replace the words with the substring I to I plus k minus 1 with the substring j to j plus k minus 1 and return the minimum number of operations to make the word k periodic. तो हमें इन रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस को करना है और हमें वर्ड को k periodic बनाना है और इन्होंने k periodic की डेफिनेशन भी दी है. लेट्स सी. We can say that a word is k periodic if there is some string of length k such that the word can be obtained by concatenating s n arbitrary number of times. That means word ab ab ab, then the word is 2 periodic. So ab ab बार बार repeat कर रहा है. So for ab 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 it's 2 periodic क्योंकि ये वाला वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है. So अब इन्होंने k दिया है. That means अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग है, so मान लो मेरा n 9 है और मेरा k है वो 3 है. That means ये तीन
और ये वाले 3 ये हमेशा सेम होने चाहिए। कि अगर यहाँ पे ए बी ए है तो यहाँ पे भी मुझे ए बी ए बनाना है, यहाँ भी मुझे ए बी ए बनाना है। ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ और है, सो लेट से यहाँ पे इसकी जगह जेड डी होता, तो मैं क्या करता, मैं इसको एज इंडेक्स आई लेता, इसको एज इंडेक्स जे लेता, और इस वाली सबस्ट्रिंग को इससे रिप्लेस कर देता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी मेरा ये ए बी ए हो जाता। करेक्ट। सो अब हमें बस ये देखना है, अगर आप सबने एक चीज नोटिस करी हो कि हमें सारे जो ये वाली सबस्ट्रिंग्स है उनको एक जैसा बनाना है। तो अब हो सकता है यहाँ पे और भी सबस्ट्रिंग्स होती, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है S1, ये स्ट्रिंग है S2, ये स्ट्रिंग है S3, ये स्ट्रिंग है S4, ये स्ट्रिंग है S5 एंड सो ऑन। तो हमें इन सबको इक्वल बनाना है और हम कुछ रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं कि हमें मान लो हमने डिसाइड कर लिया हमें सबको S1 के इक्वल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, S1 को चूज करेंगे और इसको बाकी सबकी जगह पे रिप्लेस करते जाएंगे। तो इस केस में तो हमें से अगर हमें S1 S2 ऐसे करके 5 है तो हमें 4 ऑपरेशंस लग जाएंगे। बट हो सकता है ये भी S1 है और ये भी S1 के इक्वल हो, तो हमें कम ऑपरेशंस लगते। तो बस हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है इस S की, और हमें उसको n अपॉन k में से सब्सट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि n अपॉन k हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ये सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं या डिफरेंट स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, और हमें उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर देना, वो हमारा आंसर है। तो यही करा है। सो n बाई k टोटल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तो हमने सारी सब स्ट्रिंग निकाल ली ऑफ लेंथ k, और हमने उनका फ्रीक्वेंसी उनकी इंक्रीज कर दी, और हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली स्ट्रिंग निकाल ली कि हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी बार बार अकर हो रही है। ठीक है। और हमने लास्ट में क्या करा, जो रिजल्ट है बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स बनेंगी n बाई k, उसमें से मैक्सिमम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा एक वैलिड वे है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो जैसे इसमें इन्होंने बताया कि ये लीड कोड है, सो इसको हमें 4 पीरियोडिक बनाना है। तो LEET, CODE और LEET। तो LEET की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो मैं CODE को रिप्लेस कर दूंगा LEET से। सिमिलरली इसको मुझे 2 पीरियोडिक बनाना है, तो मैं LE की फ्रीक्वेंसी ET ऐसे करके सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा और फिर उसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। So let's move to the third problem. So you are given a string S which is known to be concatenation of an anagrams. ठीक है, of some string t. Return the minimum possible length of string t. तो इन्होंने कहा है कि एनाग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letter of phrase typically using all the letter exactly once. So suppose ABA is anagram of AAB is anagram of BAA. That means S1 or S2 are anagrams if sorted of S1 is equal to sorted of S2. ठीक है, ये चीज हमें पता है। हमें क्या कहा है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जो कंकेटेनेशन है एनाग्राम्स की। दैट मीन्स कि कुछ एनाग्राम्स उसमें मतलब एक स्ट्रिंग फिक्स करा और उसके एनाग्राम्स हम बार बार अपेंड करते गए। सो लेट सपोज हमने स्ट्रिंग जो है वो फिक्स कर लिया ए बी, तो हमने जो स्ट्रिंग बनाया फाइनली वो बना ए बी बी ए, या फिर हम बना सकते थे ए बी, और ऐसे हमने इसको बार बार रिप्लेस करते गए। तो अगर हम ये वाला स्ट्रिंग देखें ए बी बी ए, तो हमें मिनिमम लेंथ बतानी है इस वाली स्ट्रिंग की जिसके एनाग्राम्स हमने बार बार ऐड करके इस वाली फाइनल जो एस वाली स्ट्रिंग है इस तक पहुंचे। तो अगर हमें मिनिमम आंसर बताना है तो मैं स्टार्ट करूंगा कि क्या पता 1 लेंथ ही होता। तो अगर 1 लेंथ की स्ट्रिंग होती हमारी ये वाली जो स्ट्रिंग है बेसिकली, तो इसके सारे लेटर इक्वल होते, ऐसा नहीं है। तो हम 2 लेंथ पे मूव करेंगे। तो 2 लेंथ पे मूव करें तो ये वाले हमें एक स्ट्रिंग मिला, ये वाला एक स्ट्रिंग मिला, तो इन दोनों को सॉर्ट करके देख लेंगे कि ये मान लो ए बी हो गया और इसका भी सॉर्टेड ए बी हो गया, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो एक पॉसिबल आंसर है। ऐसे करके हम 3 पे मूव करेंगे, 4 पे मूव करेंगे। एक और टेस्ट केस देख लेते हैं। सो लेट से हमने लिया सी डी ई एफ। सो वी स्टार्ट बाय लुकिंग कि भाई हमारा जो एनाग्राम वाला स्ट्रिंग है वो 1 लेंथ का है।
दैट मीन्स C शुड बी इक्वल टू D शुड बी इक्वल टू E शुड बी इक्वल टू F। ये वाला केस नहीं है तो 1 हमारे लिए पॉसिबल आंसर नहीं है। अब हम सेकंड देखेंगे। सो CD और EF, इन ये दोनों भी आपस में एनाग्राम्स नहीं है तो 2 भी एक पॉसिबल आंसर नहीं है। 3 हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 एक वैलिड मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर मैं C D E ले लूंगा तो यहाँ पे सिर्फ F बच जाएगा जबकि 2 कैरेक्टर्स और होने चाहिए थे। तो 3 हमारा वैसे भी एक्सक्लूड हो जाता है इस चीज से। अब हम 4 के लिए चेक करेंगे। तो 4 के लिए हम C D E F, हमारे पास एक ही स्ट्रिंग आता है तो मतलब 4 तो हमारे लिए आंसर होगा ही होगा। तो बेसिकली जो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो तो हमारे लिए आंसर होगी ही होगी। तो बस यही करा है हमने इसमें भी। हमने चेक करा कि हमने हर लेंथ से चेक करा, 1 से लेके एस डॉट साइज तक सारे नंबर्स चेक करेंगे हम। और अगर एस डॉट साइज उसका मल्टीपल है आई का तो ही एक पॉसिबल आंसर मिलेगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग को कभी भी कट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस लेंथ जो हमने ये वाला जो एनाग्राम वाला वर्ड लिया है हम सिर्फ इसके मल्टीपल्स ऐड कर रहे हैं। तो इट शुड बी डिविजिबल बाय दिस। तो हमने चेक कर लिया, पहला स्ट्रिंग लिया हमने। तो बेसिकली अब हम उस आई लेंथ के सारे सबस्ट्रिंग्स निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उसको सॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एनाग्राम्स कंपेयर करने हैं। तो दो एनाग्राम्स को चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि सॉर्ट कर लो S1 और S2, अगर एनाग्राम्स है तो उनका सॉर्टेड वर्जन तो उनका सॉर्टेड स्ट्रिंग इक्वल होना चाहिए। सो मैं फर्स्ट बार में ए को यहाँ पे स्टोर करा दूंगा, सेकेंड टाइम में मैं ए और बी को कंपेयर कर लूंगा। अगर इक्वल नहीं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये वाला एक पॉसिबल आंसर नहीं है। और एट लास्ट अगर हमेशा ये चीज इक्वल रही तो हमारा एक वैलिड आंसर मिल गया हमें, तो हम रिटर्न कर जाएंगे। So that was for the third problem. Let's move to the fourth one. So minimum cost to equalize array. So ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। So हमें एक इंटीजर दिया है, इंटीजर array nums and two integers cost1 and cost2 and you are allowed to perform two operations. तो हमें एक array दिया है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, बाद वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। 2 3 3 3 5, 2 3 3 3 5, और हमें cost1 और cost2 दो नंबर्स दिए हैं। ठीक है, दो इंटीजर्स दिए cost1 और cost2 और हमें दो टाइप के ऑपरेशन दिए, इनमें से हम कोई एक कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, पर हम एक ऑपरेशन को कितनी भी बार कर सकते हैं। सो पहला ऑपरेशन क्या है, चूज एन इंडेक्स आई एंड इंक्रीज द वैल्यू नम्स आई बाय 1 फॉर द कॉस्ट ऑफ इतने रुपीज, जो भी ये कॉस्ट ऑफ 1 है। ठीक है, सो एक C1 मान लेते हैं, एक C2 मान लेते हैं। सो एक ऑप्शन क्या है कि मैं इस इंडेक्स आई को चूज करूं और इसको 1 से बढ़ा दूं, तो मैं इसको 3 3 3 3 5 बना दूं और इस टाइम पे मेरा C1 रुपीज लग चुके हैं। ठीक है, दूसरा वे क्या है कि मैं दो डिफरेंट इंडेक्सेस को चूज करूं आई और जे को, और इंक्रीज करूं नम्स आई एंड नम्स जे को 1 से फॉर द कॉस्ट ऑफ 2। तो अब ऑप्शन क्या है दूसरा कि मैं एक बारी में दो इंडेक्स को बढ़ाऊं। तो सपोज मैंने ये चूज करा और ये चूज करा जे, और मैं इन दोनों को 1 से बढ़ा दूं, बट इस टाइम पे मेरे C2 लग जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3 3 4 4 5। एंड एट लास्ट हमें इस ऑपरेशन को करते करते हमें फाइनली क्या चाहिए कि जो हमारा नम्स एरे है वो इक्वल होना चाहिए, और हमें इसको मिनिमम कॉस्ट में करना है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं। पहला कि अगर मान लो मैं अगर C1 ऑफ कॉस्ट मेरी तब लगती है जब मैं फर्स्ट ऑपरेशन करता हूँ, और वो क्या है कि मैं सिर्फ एक ही नंबर को बढ़ाता हूँ। एक नंबर को अगर मैं आई नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ आई प्लस 1 बना देता हूँ, और दूसरे केस में क्या होता है कि मैं नम्स ऑफ आई को भी नम्स ऑफ आई प्लस 1 बना देता हूँ, और नम्स ऑफ जे को भी नम्स ऑफ जे प्लस 1 बना देता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरी C1 कॉस्ट लग रही है और यहाँ पे मेरी कंबाइंड C2 कॉस्ट लग रही है, अगर मैं इन दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग करता तो मेरी 2 टाइम C1 कॉस्ट लगती। तो अगर मेरा जो C2 है वो ग्रेटर है 2 टाइम्स ऑफ C1 से, तो आइडियल क्या है कि इसको ऐसे लेते हैं कि ये ऑपरेशन करने में हमारा 1 रुपीज लग रहा है और ये ऑपरेशन करने में 3 लग रहा है। तो हम C2 वाला ऑपरेशन क्यों करेंगे जब हम दो बार इसको बढ़ा के हम 2 रुपए में ही ये वाला एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मेरा C2 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ C1 है, तो हमारे लिए हमेशा C1 ऑपरेशन करना ही ऑप्टिमल हो जाता है।
तो इस केस में तो हम क्या करेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, जो भी हमारे टोटल एरे में मैक्सिमम वैल्यू है, और हम बाकी सभी को उसके इक्वल बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो मैं इन सब, तो मान लो मेरे मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो मैं सबको 5 बनाने के लिए ट्राई करूंगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा कि 5 इंटू जितनी भी वैल्यूज हैं, तो सपोज n वैल्यूज हैं, माइनस जो भी टोटल सम है। तो ये सारे कितनी कॉस्ट लगेगी, इसमें C1 कॉस्ट लगेगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अगर ये वाली चीज होल्ड करती है तो। ठीक है, तो हमने यही करा है, हमने चलो ठीक है, कोड की तरफ बाद में वो करेंगे। सेकंड केस क्या है कि अगर ये वाली चीज होल्ड नहीं करती, तो मेरे पास कुछ, तो मुझे कुछ नंबर ऑफ टाइम्स मुझे C2 ऑपरेशन करना है, से K1 टाइम्स मुझे C2 ऑपरेशन करना है, प्लस हो सकता है मुझे कुछ K2 टाइम्स C1 ऑपरेशन भी करना पड़े। तो मेरा फाइनल जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब मुझे ये K1 और K2 फाइंड करना है कि मुझे कितनी बार ऑपरेशन ऑफ टाइप 1 करना पड़ा और कितनी बार ऑपरेशन ऑफ टाइप 2 करना पड़ा, राइट। ठीक है, तो अब अब मुझे इतना भी पता है कि मैं अगर K1 ऑपरेशन कर रहा हूं, तो अब लेट से मेरी मैक्सिमम वैल्यू, या जो मेरी आंसर की जो मैक्सिमम एरे की जो फाइनल वैल्यू होगी जब सारे इक्वल हो जाएंगे, वो मान लेता हूं मैं कुछ z है। तो मुझे सारे एलिमेंट्स को z के इक्वल बनाना है। ठीक है, तो मेरे जो फाइनल एरे होगा, मुझे कितने चेंजेस करने पड़ेंगे। तो लेट से मान लो यहाँ पे वैल्यू थी 1 2 3 3 3 5। अब लेट से मुझे सबको फाइनली 5 नहीं 6 के इक्वल बनाना है। हो सकता है 5 में भी एक वैलिड आंसर आ जाए, मैं कह रहा हूँ मुझे सबको 6 बनाना है। दैट मीन्स मुझे इसको भी 6 बनाना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो टोटल जो हमें वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी ऑपरेशन 1 और 2 करके, वो कितनी होगी 6 इंटू कितने एलिमेंट्स है टोटल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं n दे रहा हूं, माइनस सम। ठीक है, अब ये वैल्यू हो सकता है कुछ ओड टाइप की वैल्यू आ जाए, या हो सकता है कुछ इवन टाइप की भी वैल्यू आ जाए। तो मतलब ये कैसा नंबर होगा कि 2 टाइम्स ऑपरेशन 1, मतलब बेसिकली जिसमें हम ये C2 वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ठीक है, प्लस हम कुछ C1 वाला ऑपरेशन कर रहे होंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरह का बनेगा कि मतलब C2 वाला ऑपरेशन अगर हम K टाइम्स करते हैं, बेसिकली K1 टाइम्स करते हैं। ठीक है, K1 टाइम्स हमने ये ऑपरेशन करा और K2 टाइम्स हमने ये ऑपरेशन करा, ये समझे। ठीक है, सो अब हमें ये वाली चीज भी श्योर नहीं है कि हम कितनी बार फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे कितनी बार सेकंड, बट हमें ये पता है कि हमारे ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करती, मतलब हम एल्स पार्ट में आ गए हैं ना। तो हम उस पार्ट में आ गए हैं जब हमें C2 इज लेस देन 2 टाइम्स C1, ऐसा वाला कुछ कंडीशन है। दैट मीन्स हमारे लिए C2 करना ऑप्टिमल है। तो अगर C2 करना ऑप्टिमल है, तो मैं जितनी ज्यादा बार हो सकता है उतनी बार C2 करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, तो अब लेट से मुझे टोटल वैल्यू को इंक्रीज करना है 8 से, तो मैं 4 बार C2 कर दूंगा। ठीक है, और C1 को एक भी बार नहीं करूंगा। और अगर मान लो इसको मुझे 9 से इंक्रीज करना होता, तो मैं 4 बार C2 करता और एक बार C1 करता। ठीक है, तो बस यही हमें करना है, तो मेरी फाइनल कॉस्ट इसी से आ जाएगी। सो ये देखो, हमने पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगर जो कॉस्ट ऑफ 2 है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ 1 से, तो हमारा यही आ जाएगा n इंटू मैक्सिमम माइनस सम, जो मैंने यहाँ पे लिया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 5 थी, इंटू n माइनस मेरी सम, कि मुझे इतनी वैल्यूज मिल चुकी है। यानी अब मुझे डिफरेंस बताना है बेसिकली, यहाँ पे ये वो नंबर है जिससे मुझे इंक्रीज करना है मेरे टोटल एरे को, इंटू कॉस्ट ऑफ 1, तो इंटू कॉस्ट ऑफ 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे करा 1 इंटू, ये मैंने बस इसलिए लिया था कि इंटीजर और फ्लो को अवॉइड करने के लिए, इंटू कॉस्ट ऑफ 1, और इसका फिर मैंने फाइनली मोड कर लिया। एल्स सेकंड केस में क्या है, अब ये वाली चीज मैंने क्यों करी, तो हो सकता है कि मेरा आंसर 5 ना हो, मेरा आंसर 6 हो, मेरा आंसर 5 ना हो, मेरा आंसर 6 पे जाके आए, या हो सकता है 7 पे जाके आए। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमें, लेकिन ये वाली चीज भी श्योर है मुझे कि जो मेरा आंसर है वो 5 से जाके एट लास्ट मुझे क्या होगा कि मैं ये मान लेता मेरी सारी वैल्यूज 0 से आ रही हैं, तो मेरे को मिनिमम जितना डिफरेंस है उतना ही और ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाली चीज इसलिए करी कि मैक्स प्लस मैक्स माइनस मिनिमम करा। ठीक है, अब मेरे को टोटल जो ऑपरेशंस निकालने हैं वो देखना है मुझे। तो अब मेरी जो फाइनल वैल्यू है वो आई होगी, तो मेरी जो डिफरेंस होगा बेसिकली जो मुझे बनाना है वो कितना होगा, n इंटू आई माइनस सम, जो मैंने यहाँ पे लिखा था।
कहाँ गया ये। तो इस टाइम पे मान लो आई मेरी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 6 थी, तो n इंटू आई माइनस सम। ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है कि मुझे कुछ ऑपरेशंस फर्स्ट कोस्ट वाले करने हैं, कुछ ऑपरेशन सेकंड कोस्ट वाले। तो ये कुछ ऑपरेशंस होंगे जो, अब इवन नंबर कितना होगा, ऑपरेशंस बाय 2। ठीक है। इस वो मैंने करा इवन नंबर ऑफ टाइम्स, प्लस जो रिमाइंडर बच गया, अगर कुछ बचता है तो वो मैं कर दूंगा कोस्ट वन नंबर ऑफ टाइम्स। या फिर एल्स मैं इसका उल्टा कर दूंगा, तो इसमें भी यही करेंगे कि कोस्ट टू नंबर ऑफ टाइम्स मैंने यू नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कोस्ट टू वाला ऑपरेशन करा, और रिमेनिंग नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कोस्ट वन वाला ऑपरेशन करा। एट लास्ट मैं हर बार मिनिमम लूंगा, एंड एट लास्ट आई विल रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। और मैं उसका मोड लूंगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि hence the answer should be written in k modulo n, so basically n modulo k. So that was it for the fourth problem. So I hope सबको सारे problems clear हैं। अगर कोई doubt है तो you can comment in the YouTube comment section. Thanks.